Dear students, good morning and Jai Hind. My dear guest, in the last class, we just finished the enzyme, the third biomolecules. In fact, in this particular chapter, we are just discussing different kind of biomolecules. We have discussed about carbohydrate, about protein, amino acid, and in the last class, we have discussed about enzymes also, which are biological catalysts. Children, remember this thing that except the group ribozyme, all the enzymes are proteinaceous in nature. राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए जो कि एक प्रकार का आरएनएज होते हैं, अगर राइबोजाइम को छोड़ दिया जाए तो सभी एंजाइम हम लोगों ने देखा कि प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं एंड दैट पार्ट इज सेड टू बी एज एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीनेशियस पोर्शन दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप दैट इज कोएंजाइम एंड मेटेलिक आयंस आर very well known as cofactors. Dear students, today we are going to start the next biomolecule that is nucleic acid. नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए. हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड. ओके, nucleic acid, basically nucleic acids are of two type, DNA and RNA. You have seen the building block of nucleic acid are called as nucleotides. और न्यूक्लिक एसिड दो न्यूक्लियोटाइड से या एक न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं आप, यह बिल्डिंग ब्लॉक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, साथ ही साथ फास्फोरिक एसिड होते हैं बच्चों. सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग? The combination of ribose sugar, that is 5 carbon containing sugar, then nitrogenous bases purine and pyrimidine, adenine and guanine are purine bases, whereas the thymine and cytosine are pyrimidine bases. So these bases are present inside the nucleotides. And the third one is phosphoric acid. Phosphoric acid, children, chemical formula is H3PO4. So all these things are collectively said to be as nucleotides. So if we talk about the structure of nucleic acid, children, only 4 different nucleotides bases can occur in a nucleic acid, and each nucleic acid contains millions of bases. अगर आप ह्यूमन डीएनए की बात करें तो हमारे डीएनए में 3 into 10 to power 9 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं बच्चों. समझ लीजिए कितने ज्यादा नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे जीनोम में. एंड द ऑर्डर in which these nucleotides appear in the nucleus is the coding for the information carried in the molecules. As you know that RNA basically carry the information which are being copied from DNA, because DNA is the genetic material. In other words, the nucleotides serve as a sort of genetic alphabet on which the structure of each protein in our bodies is encoded. क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ही जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वह कोडान्स के फॉर्म में रहते हैं. आप आगे चल के 12th क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस इज नोन एज कोडॉन. तो 3 नाइट्रोजनस बेसेस के ट्रिपलेट होते हैं जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन इन दिस चैप्टर दैट अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. जिस तरह घर या मकान ईंट से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल स्टार्टिंग में बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन बता रहा था, तभी मैं बताया कि ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर्स which are made up of the combination of monomers. Okay, so the monomer of nucleic acid, that is nucleotide, monomer of protein, that is amino acid, monomer of starch, that is glucose. You are understanding, children? That is monomer, and after polymerization monomer form the polymers. Okay, so you are seeing here the composition of nucleic acid, children. Nucleic acid पॉलीमर होगा, जैसा कि मैंने बताया सभी बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर होते हैं बच्चों, जो कई मोनोमर्स से जुड़ के बने होते हैं. अभी देखिए यहाँ पे भी मैं यही बात ही कर रहा था और आपको अभी ये दिखा भी रहा हूँ. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमीनो एसिड, carbohydrates are polysaccharides, many sugars are combined together, and nucleic acid is the polynucleotides made up of nucleotides. तो nucleotides यहाँ पर मोनोमर का काम करेंगे जो कि बेसिक यूनिट होंगे न्यूक्लिक एसिड के. और मैंने अभी आपको न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन बताया था बच्चों. यह देखिए कंपोजिशन, 3 चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर. एक फास्फेट comes from phosphoric acid, second one is sugar, that is either ribose sugar in RNA
or deoxyribose sugar in DNA. And here you are seeing the nitrogenous bases, children. Adenine and guanine are the purine nitrogenous bases, whereas cytosine, thymine and uracil are the pyrimidine base pair. यहीं पर मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि uracil is present in DNA in RNA on the place of thymine. Okay, thymine is present in DNA and uracil is present in RNA. This one is the big difference. Later on we shall discuss, but you should know this thing that thymine combines with adenine in DNA, whereas uracil combines with adenine in RNA. Okay, so children, you are seeing here the composition of nucleotide, which is the monomer of polynucleotide, that is nucleic acid. और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है बच्चों। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर फास्फेट। फास्फेट बेसिकली कम्स फ्रॉम फास्फोरिक एसिड, sugar is present, ribose or deoxyribose sugar, and the nitrogenous bases are present, which are purine and pyrimidine. In DNA, adenine combines with thymine and guanine combines with cytosine, whereas in RNA, adenine combines with uracil, whereas guanine combines with cytosine, children. So the composition of nucleotides we have seen the nitrogenous base, one purine and one pyrimidine. एक प्यूरिन और pyrimidine से रहेंगे, बारी बारी से जुड़े रहेंगे। और जबकि पेंटोस शुगर, देखिए राइबोस शुगर का दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पेंटोस शुगर, that is 5 carbon containing sugar. And here third one is phosphate group is esterified to the sugar, that is phosphoric acid. It comes from phosphoric acid which is esterified to the sugar. So न्यूक्लियोटाइड्स, और जब न्यूक्लियोटाइड्स में से बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर जब फास्फेट को रिमूव कर देंगे तब हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अगर हम कोई ग्रेन खा रहे हैं, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स खा रहे हैं या कोई फ्रूट्स खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से मिले हैं, वहां पर भी डीएनए होगा। एंड दैट न्यूक्लिक एसिड, दैट न्यूक्लियोटाइड इज जस्ट स्प्लिट इनटू न्यूक्लियोसाइड by splitting it into nitrogenous bases plus pentose, that is nucleoside, as well as phosphoric acid is removed here. So nucleoside, the composition is nitrogenous bases and pentose sugar, and nucleotide, the composition of nitrogenous bases, pentose sugar, as well as phosphate. Children, you are seeing that nucleic acid are long chains of nucleotides, and nucleotides are molecules with a 5 carbon sugar, that is pentose sugar. A phosphate functional group comes through phosphoric acid and a nitrogen containing bases, that is purine and pyrimidine. Okay, so nucleotides are the building block here. Similarly, जैसे आपने देखा था amino acids are the building block of protein, similarly nucleotides are the building blocks of nucleic acid. अब बच्चों कई बार मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड्स को समझाने की कोशिश की ताकि आप न्यूक्लियोटाइड के कंपोजिशन को आसानी से समझ सके। यहाँ पर 3 चीजें, राइबोस शुगर, फास्फेट, और ये राइबोस शुगर, फास्फेट और यह नाइट्रोजनस बेस, 3 चीजें मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइंड होकर न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस यह बना हुआ है एडेनिन, और जबकि साथ में शुगर जो है नाइट्रोजनस बेस, साथ में यहाँ पर शुगर जुड़ा हुआ है और पेंटोस शुगर और यह फास्फोरिक एसिड। दिस वन इज द कंपोजिशन एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड which is the monomer of nucleic acid. Nucleic acid, children, nucleic acids were first of all discovered by Swiss biochemist Friedrich Mischer. ध्यान से देखिएगा, एंड आफ्टर क्लास प्लीज नोट दिस थिंग्स। नोट्स अच्छे से बनाइएगा आप, फेयर नोट्स, ताकि चीजों को आप आसानी से रिकैप्चुलेट कर सके, दोहरा सके घर पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोकेमिस्ट। स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया बच्चों इन 1869। ओके, और फ्रेडरिक मिशर ने इसको बोला न्यूक्लिन। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड वाज जस्ट कॉल्ड एज न्यूक्लिन बाय फ्रेडरिक मिशर। There are of 2 types, DNA and RNA. We already discussed. Nucleic acid are macromolecules composed of many small units, monomers, called as nucleotides, which we have already discussed, that nucleotides are the monomers of the macromolecule, which is polynucleotide, or you can say nucleic acid. And this thing
We have already seen that nucleotide is the composition of pentose sugar, nitrogenous base, and phosphoric acid. My dear kids, if we talk about the functions of nucleic acid, because nucleic acid are very important biomolecules, so see the functions. Number one function, storage of genetic information. As you know that DNA is the genetic material, children. DNA containing the genetic information which carry from one generation to another generation. And RNA, after transcription, the genetic material of genetic information of DNA is being copied in RNA for the further process, that is protein synthesis. Okay, that is the gene expression. Okay, so nucleic acids are the storage of genetic information. Nucleic acids are the storage of chemical energy, that is adenosine triphosphate, फार्म पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स. अभी हम लोग एंजाइम्स पढ़े थे बच्चों कल, और कल हम लोगों ने देखा था कोएंजाइम्स एनएडी, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी प्लस, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, एंड एफएडी, flavin, adenine, dinucleotide, and coenzyme A, which you will discuss in respiration in plants, acetyl coenzyme A during glycolysis to Krebs cycle. And FAD also you will discuss in Krebs cycle. NAD and NADP plus will be used during photosynthesis, light reaction and dark reaction. During light reaction and dark reaction, you will discuss about these enzymes. So right now we are discussing the functions of nucleic acid. So nucleic acids are the the part of coenzymes such as NAD plus, NADP plus, FAD and coenzyme A. मैंने आपको अभी बताया भी बच्चों, यह coenzymes प्लांट फिजियोलॉजी में काम आते हैं. प्लांट फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. न्यूक्लिक एसिड एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन. ध्यान दीजिएगा, CAMP कैंप्स एक साइकिल होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं AMP को, वहां पर सेकेंड मैसेंजर का काम करता है ट्रांसडक्शन के समय. बच्चों, ट्रांसडक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन performed by bacteriophages, the lambda virus or T2 virus. So in this way, my dear kids, we have just seen the various functions of nucleic acid. Nucleic acid are the storage of genetic information. Nucleic acid are the storage of chemical energy such as adenosine triphosphate. Nucleic acids form the parts of coenzymes like NAD, nicotinamide, adenine dinucleotide, NADP plus, nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate, FAD, flavin, adenine dinucleotide, and coenzyme A that form the acetyl coenzyme A during Krebs cycle. And nucleic acid acts as second messenger in signaling during transduction, that is the special kind of sexual reproduction occurs in bacteriophages. So my dear kids, we have seen the functions of nucleic acid and types of nucleic acid. हम लोगों ने देखा न्यूक्लिक एसिड जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड है. हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को भी समझा बच्चों, और देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, DNA and RNA. Let us discuss about DNA. What is DNA, children? Deoxyribonucleic acid. In 1953, James Watson and Francis Crick, very famous names, developed a double helix model for the molecular structure of DNA. DNA के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वाटसन और क्रिक ने बच्चों 1953 में सबसे पहले DNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया, साथ ही साथ DNA के रेप्लिकेशन के लिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को भी प्रस्तुत किया. एंड फॉर दिस ग्रेट वर्क वाटसन एंड क्रिक both were awarded by Nobel Prize in 1958. After 5 years of the discovery, they both were awarded by Nobel Prize. So please see here that DNA consists of two strands that twist around each other, and two strands are of what? Two strands are of nucleotides. यह दो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रैंड्स देख रहे हैं बच्चों, which are spirally arranged. This one is the molecular structure of DNA proposed by Watson and Crick, and according to this structure, both the helix of DNA, both the helix of nucleotides are spirally arranged. Guanine combines with cytosine, you are seeing here, and adenine combines with
थाइमीन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एडेनिन थाइमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं, एंड दिस बॉन्डिंग आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिससे आपस में जुड़े होते हैं बच्चों, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के हाइड्रोजन नाइट्रोजनस बेसेस या जुड़े होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, देन प्लीज सी द distance between two nucleotide is 20 angstrom, and the length of one folding is basically 34 angstrom, in which adenine combines with thymine and guanine combines with cytosine, and the distance between two adjacent hydrogen bond is 3.4 angstrom, children. So this one is the molecular structure of DNA. DNA molecule consists of two polynucleotide chain रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया भी आपको कि स्पायरली अरेंज रहते हैं, एडेनिन थाइमीन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एडेनिन कंबाइंस विद थाइमीन बाय मींस ऑफ डबल बॉन्ड्स, whereas guanine combines with cytosine by means of triple bond, children, and these bonds are hydrogen bond. Okay, so this one is the molecular structure of DNA, which you have seen. The molecular structure of DNA proposed by वाटसन एंड क्रिक। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो आपने यहाँ पर देखा बच्चों, यह स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया। उन्होंने बताया कि डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स। एज यू नो दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबोस सुगर, दैट इज पेंटोस सुगर, प्लस phosphoric acid, that is phosphate, as well as nitrogenous bases, purine and pyrimidine nitrogenous bases. Okay, so James Watson and Francis Crick developed the molecular structure of DNA, proposed the replication model for DNA, that is semi-conservative model, in 1953, and for this great work they were awarded by Nobel Prize. So according to molecular structure of DNA, children, DNA is composed of two nucleotides which are spirally arranged, as you are seeing in this particular diagram, and adenine combines with thymine, guanine combines with cytosine through hydrogen bonds, and adenine combines with thymine through double bond, whereas guanine combines with cytosine through triple bond, children. I have also told the distance and dimension, that is the distance between two nucleotide is 20 angstrom, and length of one folding is 34 angstrom, in which 10 base pairs are present. 10 base pairs are present: adenine, guanine, thymine, and cytosine. Adenine combines with thymine, and guanine combines with cytosine. It means purine bases are combined with pyrimidine bases through hydrogen bond. Okay, now see the structure of RNA. As you already discussed, that nucleic acid are of two type. Nucleic acid दो तरह के होते हैं बच्चों, एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डीएनए हम लोगों ने देखा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल भी है बच्चों। इन 12th क्लास वी हैव टू प्रूव, 12th क्लास में आपको इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशंस को अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। उसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें बताने पड़ते हैं, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकलियार्ड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, एंड हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट्स to show that DNA is the genetic material. But right now in biomolecule we have to see both the nucleic acid. Now let us discuss the structure of RNA. Okay, RNA backbone is sugar and phosphate group similar to DNA. जैसे डीएनए में देखा था आपने, यहाँ पर भी बैकबोन शुगर और फास्फेट का है। नाइट्रोजनस बेसेस लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, और वहां पर नाइट्रोजनस बेसेस जुड़े रहते हैं साथ में। नाइट्रोजनस बेसेस आर लिंक्ड टू पेंटोस शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, यानी आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेसेस और राइबोज या पेंटोस शुगर जब आपस में जुड़ जाते हैं तब इनको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, और फास्फेट के जुड़ने पर न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोस शुगर आपस में जुड़ते हैं बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए। ओके, एंड देन फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विथ हाइड्रोक्सिल साइड चेन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फास्फोएस्टर लिंकेज। नोट्स जब आप बनाने लगेंगे
इन दोनों लिंकेज को जरूर नोट करेंगे बच्चों, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th एग्जाम एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स also. So here again I am just recapitulating my words that nitrogenous bases are linked to pentose sugar through N-glycosidic linkage. Nitrogenous bases pentose sugar से जुड़े होते हैं N-glycosidic linkage के थ्रू, और जबकि फास्फेट ग्रुप जुड़ते हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से 3 प्राइम एंड पर न्यूक्लियोसाइड से फास्फोस्टर लिंकेज से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस और पेंटोस शुगर के बीच एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जबकि फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोस्टर लिंकेज से। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 to 5 प्राइम पोलैरिटी फास्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आरएनए के केस में एडेनिन जो है थाइमिन से नहीं बल्कि यूरासिल से जुड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आरएनए और डीएनए में एक खास अंतर है। डीएनए में हम लोगों ने देखा एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि आरएनए के केस में एडेनिन यूरासिल से जुड़ा रहेगा। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस पेयर दैट इज pyrimidine बेस पेयर यूरासिल। ओके, सो चिल्ड्रन आरएनए के बारे में कुछ और बातें जो आपके लिए जरूरी है जान लें। आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए 3 तरीके के होते हैं बच्चों, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए दैट इज राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। 3 तरीके के आरएनए होते हैं बच्चों, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर आप जान लें। mRNA that is messenger RNA carrying messages, carrying genetic information of DNA in the form of codons. And I have already told you that codons are the triplet of nitrogenous base pairs. तो नाइट्रोजनस बेसिस के ट्रिपलेट होते हैं कोडान्स, जो कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। यह काम mRNA का हो गया। जबकि tRNA commonly known as transfer RNA, tRNA commonly known as transfer RNA, which just read the code of mRNA. ओके बच्चों, tRNA जो है mRNA के कोड को पढ़ लेता है, और mRNA के कोड को पढ़ने के बाद, पढ़ने का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीमेंटेरिटी के बेसिस पर tRNA अपने एंटीकोडान लूप से mRNA के कोडान से जाके बाइंड कर जाता है, और जिसके वजह से पर्टिकुलर अमीनो एसिड टर्मिनल पर जाके जुड़ता है। एंड वी हैव सीन इन प्रोटीन दैट अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और इस तरीके से जीन का एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बच्चों। सो you are seeing the mRNA and tRNA. Third one is the ribosomal RNA, rRNA, which just lead ribosome to approach towards mRNA and encounter it for protein synthesis. So, my dear kids, you are seeing here the different kind of RNAs, which are mRNA, rRNA and tRNA. जबकि डीएनए के केसेस में मैंने टाइप नहीं बताया, मैंने बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और वह ट्रांसफर होना, कॉपी होना जरूरी है आरएनए में। क्योंकि अभी तक तो यह न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिन कहा था इसको फ्रेडरिक मिशर ने, जानते हैं आप। और यह न्यूक्लिन या न्यूक्लिक एसिड एमआरएनए बनने के बाद अब न्यूक्लियस से बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है बच्चों, वेयर टीआरएनए रीड it. That's why this process is said to be as translation, and through translation protein synthesis takes place. Okay, so the expression of gene is regulated. Okay, so children, structure of RNA. Now see here, single strand of nucleotides bonded into a chain. Each nucleotide contain ribose sugar, phosphate and nitrogenous बेसेस। देखिए ध्यान से देखिए, यही तीनों चीजें आपने डीएनए में भी देखा था, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोजिशन है वह यही है, राइबोस शुगर दैट इज पेंटोजेज, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसेस। इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिला के ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और आपने देखा भी कि जब हम फास्फेट को रिमूव एलिमिनेट कर देते हैं तब बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ओके बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन राइबोस शुगर, ये 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोस शुगर होगा, फास्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन बेस, साइटोसिन
एंड यूरासिल pyrimidine बेस। यहाँ पर थाइमिन नहीं आया बच्चों, पता चल रहा है कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन आरएनए। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, जबकि बाकी तीनों नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं बच्चों, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। केवल थाइमिन की जगह पर आरएनए के केस में यूरासिल आ जाता है। ओके, एडेनिन पेयर्स विद यूरासिल ऑन द प्लेस ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद गुआनिन। डीएनए के केस में हम लोगों ने जरूर देखा था कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे डबल बॉन्ड बनता था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ एडेनिन थाइमिन से नहीं बल्कि यूरासिल से जुड़ेगा। इट इज रिप्रेजेंटिंग हियर दैट यूरासिल रिप्लेसिंग द थाइमिन इन द केस ऑफ आरएनए। आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं आरएनए और डीएनए दोनों के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है वह मोनोमर हैं और जबकि न्यूक्लिक एसिड जो है वह पॉलीमर्स हैं। इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है क्योंकि उनका जो मोनोमर है वह न्यूक्लियोटाइड है। और जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको मेनी न्यूक्लियोटाइड्स या बायोलॉजी के लैंग्वेज में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा बच्चों। So you are seeing here the structure of RNA, structure of DNA, which we have already discussed. The DNA versus RNA. Now see here. डीएनए वर्सेस आरएनए हम लोगों ने देखा बच्चों न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज की क्लास में। न्यूक्लिक एसिड का पोजीशन, न्यूक्लिक एसिड का फंक्शंस, कितने फंक्शंस न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स डीएनए और आरएनए, एंड देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर of DNA and RNA, that is molecular structure, because these are biomolecules, these are not ordinary compounds, these are biomolecules children, because these are involved in the formation of life के फॉर्मेशन में यह इन्वॉल्व है न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इनको बायोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में रखा गया बच्चों। नाउ सी हियर द इलेबोरेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। डीएनए नंबर 1, DNA name is deoxyribose nucleic acid, that is deoxyribose sugar। इसके पास deoxyribose sugar होगा। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होंगे। एडेनिन combines with thymine whereas guanine combines with cytosine। I have told you that adenine combines with thymine by means of double bond whereas guanine combines with cytosine by means of triple bond, and these bonds are especially hydrogen bonds। And third point we have seen in DNA that it is double stranded helix arrangement। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ देख रहे हैं आप डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोस शुगर कंटेन करते हैं। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन वह एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन है, और जबकि यह डबल स्ट्रैंडेड अरेंजमेंट का होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लियोटाइड्स स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं बच्चों। एंड नाउ सी द आरएनए। आरएनए द फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए containing ribose sugar, pentose sugar, not deoxy, only ribose sugar, and nitrogenous bases you are seeing adenine, uracil, cytosine and guanine। बाकी तो तीनों नाइट्रोजनस बेसेस दिखाई दे रहे हैं। एडेनिन यहाँ पर डीएनए में भी आरएनए में भी, साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में ही, गुआनिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में भी। लेकिन चेंज क्या हो रहा है? थाइमिन। डीएनए में जहां पर आपको थाइमिन नजर आ रहा है वहीं पर आरएनए में आपको यूरासिल नजर आ रहा है। इट शोज दैट यूरासिल रिप्लेसिंग थाइमिन हियर, एंड आरएनएस आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड। आप जानते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और जो वायरसेस हैं, वायरसेस के केसेस में भी बच्चों रेट्रोवायरसेस जो डिजीज काजिंग वायरसेस हैं उनके पास भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एचआईवी वायरस काजिंग एड्स, कोरोना वायरस causing COVID-19, hepatitis serum virus causing hepatitis B. These viruses are also having single-stranded RNA, but they are having a special enzyme, reverse transcriptase, and through this enzyme, they just perform the reverse transcription and convert their RNA into DNA. And DNA is the genetic material forming the multiple copies of the particular viruses and copying the genetic information, and in this way the various viruses formed attack
to the neighboring tissue for the further infection. And in this way, cancer oncogenic viruses spreaded the cancer, HIV virus spread AIDS, and coronavirus spreaded COVID-19. So these viruses just convert their RNA into DNA by means of an enzyme रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसीलिए बच्चों एड्स के मरीजों को लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए, कैंसर के मरीजों को जो ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से कैंसरस हुए हैं, उनको लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, दैट इज एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. वो एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, जिससे वायरसेस के रेप्लिकेशन को काफी हद तक चेक किया जा सकता है. सो माय डियर किड्स, इन टुडेस क्लास वी हैव सीन द न्यूक्लिक एसिड. हम लोगों ने बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स में पिछले 3 क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम पढ़ लिया था, और आज न्यूक्लिक एसिड. आप देख रहे हैं यह बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है. एक एक क्लास में एक एक बायोमॉलिक्यूल्स फिनिश हो रहे हैं, लेकिन यह अच्छा है बच्चों, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स आर आल्सो द सिलेबस ऑफ योर कॉम्पिटिशंस. जो कॉम्पिटिशंस की एग्जाम देंगे आप, उसमें भी बायोमॉलिक्यूल्स की क्वेश्चन बहुत हद तक आते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आल्सो. यह बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली. तो इसीलिए बायोमॉलिक्यूल्स को आप आराम से समझिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, और जब पूरा बायोमॉलिक्यूल समाप्त हो जाएगा, टुमारो आई विल इलैबोरेट फैट. ध्यान दीजिएगा, एज वी आर डिस्कसिंग बायोमॉलिक्यूल, वी हैव सीन दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, lipids, these are the biomolecules. So in the next class tomorrow, I promise you that tomorrow we shall discuss about lipid also. We shall see, we shall just visualize the lipid, the fat, the types of lipid, monosaccharides, disaccharides, triglycerides, monoglycerides, as well as about fatty acid and glycerol. So my dear kids, just learn the differences between DNA and RNA and prepare proper notes of nucleic acid. Thank you very much. In the next class we shall start about lipid. Thank you.